खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदा से खुद पूछे, बता तेरा रज़ा क्या है, बता तेरा रज़ा क्या है. So my dear friends, in this video you will get 15 most interesting questions from इंटीग्रेशंस बाय पार्शियल फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 7.5 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक. आपका ये ड्यूटी बनता है ये सारे क्वेश्चंस को अच्छा से वॉच करो, समझने का कोशिश करो, लगन लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो. सो माय डियर फ्रेंड्स, एक्सीलेंसी इज एन आर्ट, इट इज़ द रेगुलर हैबिट ऑफ प्रैक्टिस. इफ यू वांट टू बी वेरी गुड इन PCM, then you have to maintain consistency, you have to be disciplined, dedicated as well as determined. Now, integrations by partial fractions. So this is a questions number 9 from NCERT exercise 7.5. Integrations 3x plus 5 by this dx. So whenever you will get these types of questions, so what we'll do here, 3x plus 5, and if you take common x square, so this is x square x minus 1, and so this is x minus 1 dx. So what you'll get, so this is 3x plus 5, and here is what you'll get, so this is x minus 1 into x square minus 1 dx. And then what to write here, so this is, you can say 3x plus 5, and so this is x plus 1, and so this is x minus 1 ka whole square dx. So therefore 3x plus 5, 3x plus 5, and so this is by x plus 1, and so this is x minus 1 ka whole square, a by x plus 1, so this is b by x minus 1, so this is c by x minus 1 ka whole square. And then what to write, so this is 3x plus 5, so this is a into x minus 1 ka whole square, b into x plus 1 into x minus 1, and c into, so this is what, b is what, x plus 1 and x minus 1, and c is also is what, so this is x minus 1 ka whole square, so this is x plus 1. ठीक है. सपोज पुट x इक्वल टू -1, दोनों जीरो हो गया, सो दिस इज़ 4a इक्वल टू -1 -3 + 5, सो दैट इज़ 2, a का वैल्यू 1/2 है. एंड सो दिस इज़, जब x का वैल्यू 1 है, a 0, सो दैट इज़ ट्वाइस c इक्वल टू 8 है, सो दिस इज़ c का वैल्यू 4 है. जब कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, coefficients of x square equal to left hand side, so that is 0, x square a plus b equal to 0 है. यहीं से x square, यहीं से भी x square मिल रहा है. so this is b का वैल्यू क्या होगा ना, so that is माइनस a का वैल्यू क्या है, -½ है. so the given integral, so this जो given integral है, so this part, ठीक है. the given integral reduces to, given integral, so this is reduces to, so a का वैल्यू हाफ, सो दिस इज़ dx बाई x प्लस 1, b का वैल्यू -½ सो दिस इज़ dx बाई x minus 1, एंड c का वैल्यू इज़ व्हाट, सो दैट इज़ 4 dx बाई x प्लस x minus 1 का होल स्क्वायर. सो दिस, ठीक है. इसका जो इंटीग्रेशंस है, ऑब्वियसली यू कैन फाइंड आउट लॉग ऑफ दिस, एंड सो इसका जो इंटीग्रेशंस है, सो यू कैन राइट हाफ ऑफ लॉग ऑफ, सो दिस इज x minus 1 by x plus 1, एंड हियर इज व्हाट -4 by x minus 1 प्लस c है, नथिंग एल्स. ठीक है, क्लियर, यही आपको समझना है. Now integrations by partial fractions from NCERT exercise 7.5 and questions number 10, 2x minus 3 by x square minus 1 into 2x plus 3 dx. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, what will write 2x minus 3, and so this is 2x plus 3 into x square minus 1, so this is a by 2x plus 3, and इसका डेरिवेटिव भी आप ऐसा लिख सकते हो, bx plus c, so this is by x square minus 1. And then what we'll do, so LCM ले लो, 2x minus 3 equal to a into x square minus 1, so this is plus bx into 2x plus 3, and so this is c into 2x plus 3. ठीक है. अभी देखो x का जगह पे पुट x इक्वल टू -3/2, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सो दिस इज 9/4 -1 -5 a/4 इक्वल टू 2, सो दिस इज, यहीं पे क्या हो रहा है देखो, सो दैट इज व्हाट, 2 कैंसिल, सो दिस इज़ -1 -3, सो दैट इज़ -4, तो a का वैल्यू क्या है, 16/5 है. नाउ अब यहीं पे पुट x इक्वल टू 0, x जब 0 है, सो दिस इज़ -a प्लस 3c इक्वल टू -3, सो दिस इज़ 3c का वैल्यू क्या होगा, -3 प्लस a का वैल्यू क्या है, 16/5 -3, सो दिस इज़ 1/5, सो दिस इज़ c का वैल्यू क्या है, सो दैट इज़ 1/15 है. नाउ अभी कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर को 0 कर दो,
लेफ्ट हैंड साइड पे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सो दिस इज कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है, ठीक है। राइट हैंड साइड पे दिस इज ए प्लस टू बी, सो दिस इज इक्वल टू 0, सो दिस इज ए प्लस टू बी इक्वल टू 0, सो दिस इज टू बी इक्वल टू माइनस ए का वैल्यू क्या है -16/5, सो दिस इज बी का वैल्यू क्या होगा ना -8/5। अभी ये जो इंटीग्रेशंस है इसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हियर द गिवन इंटीग्रल reduces to, so this is a का वैल्यू क्या है ना 16/5, so this is dx by 2x plus 3, and b का वैल्यू क्या है -8/5 ax by x square minus 1, and c का वैल्यू क्या है, so this is dx 1/15, so this is dx by x square minus 1, बस नथिंग एल्स, यही आपको लिखना है। सो दिस इज, देखो ये क्या हो गया इसका 8/5 log ऑफ 2x plus 3, ये क्या होगा 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज़ 4/5, ठीक है। सो दिस इज़ log ऑफ x minus 1 by x plus 1, ठीक, क्लियर। सो दिस इज दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या होगा, सो दिस इज 1/30 log ऑफ x minus 1 by x plus 1 प्लस c है, बस नथिंग एल्स, यही आपको लिखना था, ठीक है। क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन जनरली, ठीक है, जनरली आपको पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो इस टाइप का क्वेश्चंस को आप पहले समझने का कोशिश करो, फिर अच्छा से प्रैक्टिस करना। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम partial fractions NCERT exercise 7.5 क्वेश्चन नंबर 11, 5x dx by x plus 1 by x square minus 4 है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, सो दिस इज 5x by x plus 1 एंड सो दिस इज x square minus 4 है, सो टू राइट, सो दिस इज x plus 1 एंड सो दिस इज bx plus c by x square minus 4 है, ठीक है। एंड दोनों साइड आप एलसीएम ले लो, सो दिस इज 5x इक्वल टू क्या होगा ना e इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 plus bx into x plus 1 plus c into x plus 1, and then what to do, a का वैल्यू फाइंड करना है, दोनों को जीरो करना है, पुट x इक्वल टू -1, ए जीरो जीरो, सो दिस इज 1 - 4 - 3 इक्वल टू -5, ए का वैल्यू क्या है 5/3 है, एंड सो दिस इज x इक्वल टू 0 पुट करो, ए जीरो हो गया, सो दिस इज c - 4a इक्वल टू 0 है, सो दिस इज c का वैल्यू 4a मीन्स क्या, सो दिस इज 20/3 है, एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर को आप जीरो कर दो, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है 0 है, तो यहीं पे a एंड सो दिस इज a प्लस b इक्वल टू 0 है, सो टू राइट, सो दिस इज b का वैल्यू क्या है, सो दैट इज -a -5/3 है। ये जो इंटीग्रल है इसको इस फॉर्म में लिखना है, द गिवन इंटीग्रल रिड्यूसेस टू, so this is a का वैल्यू क्या है 5/3, so this is dx by x plus 1, and b का वैल्यू क्या है -5/3, so this is x by x square minus 4, and c का वैल्यू क्या है, so that is what 20/3, so dx by x square minus 4 है, so this is 5/3 log of, so this is x plus 1, and so this is 5/6 log of x square minus 4, and so this is 1/2 into a, so that is what 4, so that is 5/3 log of, so this is x minus 2 by x plus 2 प्लस c है, बस नथिंग एल्स, ठीक है। तो यार इसी टाइप का क्वेश्चंस को आप इसी तरीक़ा से सॉल्व करोगे। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फोर्थ-कमिंग बोर्ड एग्जाम। Now this is a question from integration by partial fractions NCERT exercise 7.5, integrations x cube plus x plus 1 by x square minus 1, so you can do it। so this is देखो x cube by x square minus 1, and so this is x by x square minus 1 dx है, ठीक है। and then what to write, so this is so this is you can write, so what to write here, now तुम्हें यहीं से you can write, so this is x cube minus 1, and here is what, so this is x cube by x square minus 1, and so this is, इसको देखो 1 by x minus 1 dx है, ठीक है। and if you divide, so this is x cube by x square minus 1, what will get, so this is x cube minus x, so this is minus plus, so that is what, now so this is x, what will get, so this is equal to, you will get, so here x plus x by x square minus 1, ठीक है। एंड सो दिस इज प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, सो दिस इज what dx है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हाफ ऑफ लॉग
एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सो दिस इज लॉग ऑफ एक्स माइनस वन प्लस सी है, बस नथिंग एल्स, आपको यही करना है। ठीक है, जब भी न्यूमरेटर में डिग्री ज़्यादा होगा सिंपली डिवाइड दैट टर्म बाय द डिनोमिनेटर, बस नथिंग एल्स। ठीक है, क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये पार्शियल फ्रैक्शंस का नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, देखो जब डिग्री न्यूमरेटर का ज़्यादा होगा तो उसको आपका एम है उसको डिग्री में कम में कन्वर्ट करना है, इसीलिए डिवाइड कर दिया। ठीक है, देखो डिवाइड करके देखो कम में लिखा है, ए पार्शियल फ्रैक्शन है लेकिन इसका डेरिवेटिव 2x होता है तो हाफ इंटू लॉग ऑफ दिस कर दिया। इसका इंडिकेशन तो आप ऑब्वियसली कर सकते हो, सो दैट इज व्हाट लॉग ऑफ x माइनस वन प्लस सी है। This is a questions from partial fractions NCERT exercise 7.5 integrations 2 by 1 minus x clear into 1 plus x square dx, nothing else। ठीक है, so here you can write, so this is equal to so this is minus 2 by यहीं से माइनस कॉमन ले लो, x minus 1 and x square plus 1, so this is a by x minus 1 and bx plus c by x square plus 1, so it will get, so this is minus 2 a into x square plus 1, so this is bx x minus 1 plus c into x minus 1। ठीक है, क्लियर? एंड देन व्हाट विल डू, देखो x का जगह पे आप 1 पुट करो, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, सो दिस इज व्हाट 2a इक्वल टू माइनस 2, सो इट विल गेट a का वैल्यू क्या है ना माइनस 1 है। अभी x का जगह पे 0 पुट कर दो, a माइनस सी इक्वल टू माइनस 2, तो c का वैल्यू क्या है a प्लस 2, a का वैल्यू तो माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 1 है। ठीक है, एंड देन व्हाट विल डू, कोफिशिएंट सम एक्स भी ले सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म भी ले सकते हो, सो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो दैट इज 0 है। देखो यहीं पे a प्लस बी इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू क्या है, सो दैट इज माइनस ए, सो दैट इज व्हाट 1 है। द गिवन इंटीग्रल रिड्यूसेस टू, ठीक है, तो a का वैल्यू क्या है ना, a का वैल्यू माइनस 1, सो डी एक्स बाई एक्स माइनस 1, b का वैल्यू क्या है, सो दिस इज़ 1, सो दिस इज़ एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, c का वैल्यू क्या है, वो भी 1 है। ठीक है, सो दिस इज़ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो इट विल गेट, सो दिस इज़ माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस हाफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव 2x होता है, हाफ इंटू 2 कर दो, डी टी बाई टी लॉग टी है, और ये तो tan इनवर्स x है, सो दिस इज प्लस सी है, बस नथिंग एल्स, आपको और कुछ नहीं करना। ठीक है, यही लिखना है बस। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली क्लियर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आपका ड्यूटी बनता है इसी टाइप का क्वेश्चन को आप अच्छा से प्रैक्टिस करो। Now this is a questions from partial fractions NCERT exercise 7.5 3x by x plus 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये समय डिफरेंस ये क्वेश्चंस को आप इसी तरीके से भी कर सकते हो। सो लाइक दिस, देखो मैंने 3 को लिख रहा हूँ, x प्लस 2 एक फैक्टर लेके आना है, x प्लस 2 लिख दिया तो 3x प्लस 6, लेकिन यहीं पे तो माइनस 1 है, सो दिस इज बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर, नथिंग एल्स। ठीक है, अब ये सेपरेट कर दो दिस बाई दिस, सो इट विल गेट, सो दिस इज dx बाय x प्लस 2 है। ठीक है, एंड सो दिस इज dx बाई, सो दिस इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो ये क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 2, एंड सो दिस इज प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 प्लस सी है, बस नथिंग एल्स, आपको और कुछ नहीं करना, यही लिखना है। ठीक है, क्लियर? ये क्वेश्चंस लेकिन अच्छा है, क्लियर बोर्ड एग्जाम्स के लिए इस टाइप का क्वेश्चंस लेकिन अच्छा है, आपको इसी टाइप का क्वेश्चंस को अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। Now this is a questions from integrations by partial fractions NCERT exercise 7.5 dx by x4 minus 1। जब भी इस टाइप के इंटीग्रेशन होगा आप क्या करोगे, इसका फैक्टर को फाइंड करो, इसका फैक्टर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर यहीं पे सीक्वेंस सीरीज़ का कंसेप्ट लगाओगे, पहले जो छोटा है उसको लिखोगे एंड ग्रेटर 1 को बाद में लिखना, न्यूमरेटर में 1 कर देना, एंड सो दिस इज डी एक्स। देखो यहीं पे ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 2 है, सो दिस इज़ 1/2 है। बस अब क्या करोगे 1/2, सो दिस इज़ 1/2 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस सी है। ठीक है, क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सॉल्व करना, लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम से एज वेल एज छोटे मोटे चाहिए एग्जाम में ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। This is a fantastic questions from integrations by partial fractions exercise 7.5 from NCERT books dx by x into x to the power n plus 1। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा आप क्या करोगे, इसको भी x to the power n का फॉर्म में लिखना, सो दैट इज x to the power n minus 1 एंड सो दिस इज x to the power n into x to the power plus 1 dx। एंड क्या करोगे, पुट x to the power n इज इक्वल टू t है, सो n x to the power n minus 1 dx इक्वल टू dt है, सो इट विल गेट 1 by n, सो दिस इज what dt by t इंटू टी प्लस 1,
फिर सीक्वेंस सीरीज का कंसेप्ट को लगाओ। सो दिस इज पहले जो छोटा है एंड देन ग्रेटर वन टी प्लस वन डी टी है, ए लॉग ऑफ टी प्लस वन, सो इट विल गेट वन बाई एन लॉग ऑफ, सो दिस इज टी बाई टी प्लस वन प्लस सी है, सो दिस इज वन बाई एन लॉग ऑफ टी का मतलब क्या है एक्स टू द पावर एन बाई, सो दिस इज एक्स टू द पावर एन प्लस वन प्लस सी है। छोटा फैक्टर ऊपर रहेगा एंड ग्रेटर वन नीचे रहेगा। ठीक, क्लियर। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली क्लियर बोर्ड एज वेल एज जेईई एग्जाम में पूछा जाता है। Now, so this is NCERT exercise 7.5 cos x dx by 1 minus sin x into 2 minus sin x dx. Clear? So here this is a questions from integrations by partial fractions exercise 7.5 NCERT. So first of all what we'll do here, put sin x equal to t है, ठीक है। सो इट विल गेट, सो दिस इज cos x dx इक्वल टू dt है। सो इट विल राइट, सो दिस इज dt एंड हियर इज व्हाट नाउ 1 माइनस t एंड 2 माइनस t है। एंड देन व्हाट विल डू, सो यू विल राइट, सो यहीं से भी माइनस कॉमन ले लो एंड सो दिस इज t माइनस वन एंड यहीं से भी क्या है t माइनस टू है। एंड देन व्हाट विल डू, सीक्वेंस सीरीज का कंसेप्ट, पहले छोटा फैक्टर को लिखो t माइनस टू एंड देन ग्रेटर वन t माइनस वन, न्यूमरेटर वन माइनस, सो दिस इज व्हाट dt है। क्लियर। अभी ये दोनों में डिफरेंस क्या है, वन है तो कुछ नहीं लिखना, ठीक है। सो व्हाट विल गेट, सो दिस इज लॉग ऑफ t माइनस टू एंड सो दिस इज बाई t माइनस वन प्लस c है। t इज व्हाट, सो दिस इज t इज sin x है, sin x माइनस टू एंड सो दिस इज sin x माइनस वन प्लस c है, ठीक है। क्लियर। सो इस स्टेप का क्वेश्चन को आप इसी तरीक़ा से सॉल्व करना, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। Now, so this is a questions from partial fractions NCERT exercise 7.5. partial fractions का क्या रूल है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। लेकिन ये जो क्वेश्चन है देखो दोनों का डिग्री सेम है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट टीम होगा, क्लियर। फर्स्ट टीम आपको क्या करना है, नहीं इसको partial fractions में रिड्यूस करना है। तो उससे पहले करो पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी है, सो दिस इज टी प्लस वन इंटू टी प्लस टू एंड सो दिस इज टी प्लस थ्री इंटू टी प्लस फोर है, ठीक है। सो इट विल गेट, सो दिस इज टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस टू एंड सो दिस इज टी स्क्वायर प्लस सेवन टी एंड सो दिस इज 12 है। एंड देन व्हाट विल डू, इसको ऐसा करके लिखो टी स्क्वायर प्लस सेवन टी प्लस 12, ठीक है। लेकिन यहीं पे तो 3t है तो माइनस 4t एंड यहीं पे 2 है, सो दिस इज व्हाट 10 एंड नीचे क्या हो रहा है देखो, सो दिस इज टी स्क्वायर प्लस सेवन टी प्लस 12। इसको डिवाइड करो, सो दैट इज 1 माइनस 4t प्लस 10 एंड सो दिस इज ए क्या हो गया ना t प्लस 3, सो दिस इज t प्लस 4। ए पार्ट देखो, ए पार्ट अभी पार्शियल फ्रैक्शंस में रिड्यूस हो गया। अभी इसको ब्रेक करो, सो दिस इज 4t प्लस 10 एंड सो दिस इज t प्लस 3 एंड सो दिस इज t प्लस 4, सो दिस इज a का वैल्यू क्या है t प्लस 3 एंड सो दिस इज b t प्लस 4। अभी दोनों को एलसीएम ले लो, सो दिस इज 4t प्लस 10 इक्वल टू a इंटू टी प्लस 4 एंड सो दिस इज b इंटू टी प्लस 3। अभी पुट, सो दिस इज t इक्वल टू माइनस 3, ए जीरो है, सो दिस इज a का वैल्यू क्या है माइनस 12 प्लस 2, सो दिस इज माइनस 2। t का वैल्यू क्या है माइनस 4 जीरो है, सो दिस इज माइनस b माइनस 16 प्लस 10, सो दैट इज माइनस 6, सो दिस इज b का वैल्यू 6 है। सो देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल रिड्यूसेस टू इस फॉर्म में। सो e का वैल्यू क्या है ना माइनस 2, सो दिस इज डी एक्स बाई टी क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड b का वैल्यू क्या है, सो दैट इज 6, सो दिस इज डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, so it will get minus 2 by root 3 tan inverse, so this is x by root 3 and 1 by a, so this is 3 tan inverse x by 2 plus c है, बस nothing else, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है, इसी तरीक़ा से ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। Now, so NCERT exercise 7.5 questions number 19. So this is partial fractions का क्वेश्चन है 2x by this। देखो 2x इसका डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर का, सो दिस इज आप पुट करो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, सो दिस इज 2x dx इक्वल टू dt है, सो दिस इज dt बाई, सो इट विल से t प्लस 1 एंड सो दिस इज t प्लस 3। ये दोनों का बीच में जो छोटा है पहले लिखना, ग्रेटर 1 को बाद में लिखना, सो दिस इज 1 1, सो दिस इज dt इंटीग्रेशन दिस, ये log ऑफ t प्लस 1 log ऑफ t प्लस 3, सो इट विल राइट, सो दिस इज log ऑफ t प्लस 1 बाई, सो दिस इज t प्लस 3 प्लस c है। अभी t का मतलब क्या है, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस c है, ठीक है। क्लियर, बस यही आपको करना था। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फॉरकमिंग बोर्ड एग्जाम।
This is a fantastic questions from partial fractions exercise 7.5 NCERT question number 20 dx by x into x4 minus 1 जब भी होगा इसको भी x4 में आप रिड्यूस कर लोगे so this is x cube by x4 into x4 minus 1 dx and put so this is x4 equal to t so this is 4x cube dx equal to dt है so this is 1 by 4 so this is dt by t into t minus 1 है पहले छोटा फैक्टर को लिखोगे obviously you can say जो माइनस होता है छोटा होता है so this is what dt and so this 1 by 4 so this is log of t minus 1 by t so this is plus c है so this is 1 by 4 t means क्या x4 minus 1 by x4 plus c है ठीक है clear so this is like this ठीक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे मोटे जेईई एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पूछा जाता है now so this is a fantastic questions from NCERT exercise 7.5 integrations dx by to the power x minus 1 so you can write here e to the power x से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो so this is e to the power x minus 1 dx so this is put e to the power x equal to t तो इसका डेरिवेटिव ऐसा ही होगा so this is dx equal to dt है so what you'll get so this is dt by so this is t into t minus 1 है so what you'll get पहले छोटा फैक्टर को लिखो t minus 1 and the greater one so this is dt है ठीक है दोनों का बीच में डिफरेंस 1 है तो कुछ नहीं लिखना सो दिस इज़ लॉग ऑफ t माइनस 1 बाई टी प्लस सी है सो दिस इज़ लॉग ऑफ t का मतलब क्या है e टू द पावर x माइनस 1 सो दिस इज़ e टू द पावर x प्लस सी है ठीक है क्लियर सो माय डियर फ्रेंड्स सो दिस इज़ fantastic questions from NCERT books for your forthcoming board exam as well as JEE exam. This is a fantastic questions from partial fractions NCERT book exercise 7.5 questions number 22 x dx by this so you can write so like this देखो इसको ऐसा करके लिख लो so this is by x minus 1 and x minus 2 dx this by this ठीक है this by this का मतलब क्या है this by this so this is dx by x minus 2 है and so this is dx by so this is x minus 1 into x minus 2 है so what you'll get so this is dx by x माइनस 2 एंड हियर पहले छोटा को लिखोगे जो जिसका माइनस ज़्यादा है वो छोटा होता है न्यूमरेटर 1 बीच में माइनस साइन ठीक है क्लियर एंड सो दिस इंटीग्रेशन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 है कुछ नहीं लिखना ठीक है तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया अल्टीमेटली ट्वाइस ऑफ dx बाई x माइनस 2 एंड सो दिस इज dx बाई x माइनस 1 है सो इट विल गेट सो दिस इज ट्वाइस लॉग ऑफ x माइनस 2 एंड सो दिस इज x माइनस 1 प्लस c है सो यू कैन राइट सो दिस इज x minus 2 का होल स्क्वायर एंड सो दिस इज x minus 1 प्लस c है नथिंग एल्स यही आपको करना है दिस इज़ अ फैंटास्टिक क्वेश्चंस इसे समझने का कोशिश करना आपका ड्यूटी बनता है इसे अच्छा से समझने का कोशिश करो दिस इज़ अ फैंटास्टिक क्वेश्चन dx बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा यहीं पे क्लियर इसको भी एक्स स्क्वायर में रिड्यूस कर लोगे तो मैंने क्या किया ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ सो दिस इज़ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 सो दिस इज़ पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी है सो दिस इज़ 2x dx इक्वल टू dt है सो दिस इज़ व्हाट हाफ ऑफ dt बाई सो दिस इज़ t इंटू टी प्लस 1 ठीक है क्लियर सो दिस इज हाफ पहले छोटा को लिखो एंड देन ग्रेटर 1 सो दिस इज dt एंड सो दिस हाफ ऑफ लॉग ऑफ सो दिस इज t बाई t प्लस 1 प्लस c है ठीक है सो दिस इज हाफ लॉग ऑफ सो दिस इज एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 सो दिस इज प्लस c है ठीक है बस नथिंग एल्स आपको और कुछ नहीं करना यही लिखना है ये क्वेश्चंस भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है फॉर योर फोर्थ कमिंग बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज छोटे मोटे जेईई एग्जाम्स लाइक जेईई मेन क्लियर बीट सेट कॉमेट एमआई सेट वेस्ट बंगाल जेईई एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज़ है सो माय डियर फ्रेंड्स आपका ड्यूटी बनता है इसी टाइप का क्वेश्चंस को आप अच्छा से क्लियर पहले समझने का कोशिश करो फिर लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो सो माय डियर फ्रेंड्स प्रैक्टिस इंप्रूव योर क्वालिटी प्रैक्टिस इंप्रूव योर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इंप्रूव योर skill practice improve your strength practice improve your muscle power in the subject practice will make you a master for board as well as JEE exam the more you practice the more you get the more you practice and study the better you are excellence is an art it is the regular habit of practice remember it so my dear friends practice will provide you perfection will provide you confidence will give you excellent result in board as well as JEE exams if you want to be very good in PCM then you have to maintain consistency you have to be disciplined dedicated as well as determined. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe my maths channel. All the very best for your better future.